دعوت دیں گے بھائی تاریخ کے وہ آئے اور آج کے زندہ کلام سے ہم سب کو مجبور کریں. ہم اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور دعا کریں گے کلام کے لیے. قدوس مہربان باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند، تیرا نام مبارک ہو خداوند کہ تو ہمیں پیار کرتا ہے. آسمانی باپ، تیرا شکر ہو اس وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے سندر قدموں میں آ سکیں. خداوند زندہ جلالی یسوع، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں خداوند. خداوند اپنے دلوں کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں، اپنی جان، بدن اور روح کو خداوند تیرے حضور میں سرنڈر کرتے ہیں. اپنے پاک روح کی آگ انڈیل دے خداوند، یہ ساری جگہ خداوند تیرے پاک روح کی آگ سے بھر جائے. ایک ایک جان، بدن اور روح پر تیرا مسا ٹھہر جائے. تیری حضوری سے یہ جگہ بھر جائے خداوند. تیرا مسا ہمیں گھیر لے، تیرا آبر ہمیں گھیر لے خداوند. خداوند ساری ڈسٹربنس پیدا کرنے والی، سوچوں کو، خیالوں کو منتشر کرنے والی ساری گندی ناپاک تاثیریں یہاں سے جاتی رہے. خداوند تیرے پاک روح کی آگ یہاں پر بھر جائے، تیرا مسا ٹھہر جائے خداوند. میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں خداوند. خداوند میں نہیں بلکہ خداوند تیرا پاک روح مجھ میں سے بولے. خداوند تیری مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں. خداوند یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے. ٹھیک ہے؟ سننا مسیح کے کلام سے. اور زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے. تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. اور پھر آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے وحید کا. میرے عزیزو، یہ سب تو بات یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی ہے. یعنی کہ ابتدا میں یسوع تھا اور یسوع ہی خدا تھا. میرے عزیزو، یہ زندہ کلام، میں ہمیشہ کہتا ہوں جس نے یسوع کو دیکھنا ہے، یہ ہے، یہ کلام ہے خدا کا. اور کلام مجسم ہوا اور یسوع کی صورت میں ہمارے درمیان رہا، اس دنیا پر، اس زمین پر، سرزمین پر چلتا پھرتا رہا. میرے عزیزو، یہ خداوند کا کلام ہی ہے جو ہمیں بحالی عطا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بحالی عطا کرتا ہے. بحالی کیوں عطا کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارا کچھ کھو گیا ہے. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کھو سکتے ہیں، لوز کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو کھو سکتے ہیں، ہم اپنے رشتے کھو سکتے ہیں،
اپنی چیزیں کھو سکتے ہیں، اپنا مال و دولت کھو سکتے ہیں، ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے، اور ہمارا ٹائم برباد ہو سکتا ہے۔ کیا؟ ہمارا ٹائم ہم سے جاتا رہتا ہے، کھویا جا سکتا ہے، ہم اپنا وقت ضائع کر سکتے ہیں، رشتے بھی بحال ہو سکتے ہیں، تھوڑے وقت کے بعد ہمیں نئے رشتے مل سکتے ہیں، ہمارا جو مال و دولت، گھر بار، پیسہ جو ہم کھو دیتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، وہ آنے والے وقت میں ہمیں مل سکتا ہے۔ لیکن کیا ٹائم مل سکتا ہے؟ مرنے والے آدمی سے اگر اس کو پوچھا جائے کہ اس کو کیا چاہیے تو کیا مانگے گا؟ وہ ٹائم مانگے گا۔ سب سے قیمتی چیز جو ہماری زندگی میں ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم ہے، وقت ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بحال کرنے والا خداوند ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بحالی، ریسٹوریشن، اور آج ہم جانیں گے کہ بحالی کے کیا اصول ہیں۔ ہم کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی مملکت میں، بادشاہت میں رہتے ہیں، تو ہم اس مملکت کے، اس بادشاہی کے، اس شہر کے، اس جگہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ جو یہ روحانی بادشاہت ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ میرے عزیزو، وہ بادشاہی، وہ خداوند کی بادشاہی جو ہمارے درمیان ہے، ہمیں اس کے پرنسپلز کے متحد ہی اپنی زندگیاں گزارنی ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ بحال کرنے والا کلام ہے۔ کچھ بھی، کوئی انسان لاس کی بات نہیں سننا چاہتا۔ کوئی انسان سننا چاہتا ہے، ہمیں پسند ہے کہ ہم نقصان کی یا لاس کی بات سنیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو پروفٹ کی، فائدے کی بات معلوم ہو، وہ سننا چاہتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی فائدے کی بات ہو، نقصان کی بات کوئی نہیں سننا چاہتا۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم چیزیں کھو سکتے ہیں، ریلیشن شپ کھو سکتے ہیں، ٹائم بھی کھو سکتے ہیں، ہمارا ٹائم جاتا رہتا ہے، ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند ان تینوں چیزوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا؟ خداوند کا کلام ان تینوں چیزوں کو، لوگوں کو بھی جو ہماری زندگی میں ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ انہیں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ٹائم کو بھی ہماری زندگی میں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ٹائم میں نہیں رہتا میرے عزیزو۔ ہم کہتے ہیں خدا اول سے لے کے ہمیشہ تک ہے۔ ہمیشگی کیا ہے؟ وہ وقت جو جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ایٹرنٹی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خدا ٹائم کے باہر رہتا ہے۔ یہ جو ابتدا اور یہ ہمیشگی کے لفظ یوز ہوئے، یہ صرف ہمیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے یوز ہوئے۔ خدا اس سے باہر رہتا ہے، وہ نہ ماضی میں رہتا ہے نہ مستقبل میں رہتا ہے، وہ موجود ہے ہر وقت۔ اسی لیے جب موسیٰ نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میں ہوں سو ہوں۔ وہ ٹائم سے باہر رہتا ہے، اس لیے وہ ٹائم کو کمانڈ کرتا ہے، وہ ہمارے لیے وقت کو ویسے ہی بحال کر سکتا ہے۔ اس کا کلام جو ہے وہ اس کی اتھارٹی کو، اس کی انٹیگریٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ ریسٹوریشن، کوئی مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک بحالی کا عمل ہے۔ یسوع مسیح نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا، تو وہ کیا تھا؟ بحال کر دیا، واپس
जिंदगी में बहाल कर दिया। आए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, योएल नबी की किताब है, उसका 2 बाब और 21वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, ऐ जमीन हरासा ना हो, खुश हो और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद बड़े बड़े काम करने को है। आए मैदान के हवानों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबानी चिरागाहें सब्ज होती हैं और दरख्त अपना फल लाते हैं और अंजीर और अंगूर अपना पूरा समर देते हैं। और तुम ऐ सहून के फरजंदो खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुम्हें मुअल्लम सदाकत अता करेगा और पहले की तरह पहली और पिछली बारिश तुम्हारे लिए वक्त पर वक्त भेजेगा। बस खलियान गेहूं से भर जाएंगे और कोलू नई मैद और ताजा तेल से लबरेज होंगे। और खास बात ध्यान से सुनिए, 25वीं आयत है, 2 बाब योएल नबी की किताब 2 बाब 25वीं आयत, और मैं उन बरसों का वो हासिल तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या? और मैं उन बरसों का वो हासिल तुम्हें वापस दे दूंगा जो मेरा तुम्हारे खिलाफ भेजा हुआ लश्कर अजीम यानी टिड्डी और मल्ख और झांझा और जराद निकल कर चट कर गया। तुम खूब सेर होकर खाओगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की सताइश करोगे जिसने तुम्हारे लिए अजीब काम किए हैं, और मेरी उम्मत फिर कभी शर्मिंदा ना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इस खुदावंद के कलाम में हमने देखा कि खुदावंद बरसों का जो नुकसान है, पिछले सालों में 10 सालों में 20 सालों में जो आपका नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें खुदा आपको इसी साल 2022 में देने की कुदरत रखता है। तो आपका टाइम बहाल होता है। खुदावंद जो आपने 20 सालों में पिछले गुजरे हुए सालों में हासिल करना था, खुदावंद आपको वो इसी साल देने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, रेस्टोरेशन की, बहाली की, तो जरूर है कि हम इस बात को जान लें कि बहाली से पहले बर्बादी आई होती है। तो बर्बादी जो है, जो तबाही है, जो हमारा नुकसान हो गया है, जो लॉस हो गया है, उसकी क्या वजूहात है? खुदावंद का कलाम हमें 5 बातें बताता है। कितनी? 5 बातें। 5 बातें जो है वो हमें बताता है खुदावंद का कलाम, कि हम वो सीख सकते हैं कि क्या वो चीजें हैं जिनकी बदौलत हम नुकसान उठाते हैं। तो नंबर 1 जो है, लैक ऑफ डिसर्नमेंट, समझदारी का ना होना। गुरु की नेमतें हैं हिकमत, समझ। नंबर 1 जो चीज है जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं, वो क्या है? समझदारी। समझदारी का ना होना। मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब, अब्रानियों की किताब 2 बाब और 1 आयत से सुनो। इसलिए वाजिब है कि जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करें, ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम दिल लगाकर सुने, दिल लगाकर उसको समझें। ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं, पीछे रह जाएं, नुकसान उठाएं। दूसरा, यसाया का 1 बाब हम देखेंगे
वहां खुदावंद का कलाम हमें बताता है, यशायाह पहला बाब लिखा है 3 आयत से, बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को जानता है। क्या? बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को जानता है, मगर इस्राएल ने ना जाना और मेरी उम्मत ने ना समझा। खताकार कौम और गुनाह से लदी हुई उम्मत और बेदीन नस्ल और बदकरदार फर्जंदों पर अफसोस। जानवर जो है वो अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचानता, उसको समझता नहीं, उसके कवानीन को नहीं समझते, उसकी बातों पर ध्यान नहीं लगाते, उसके कलाम पर सोचते नहीं है, गौर नहीं करते, उसको समझते नहीं है। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा है, अबलीस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चर्च में आए, दुआएं करें, कुछ भी करें। उसको फर्क उसी वक्त पड़ता है जब आप इस जिंदा कलाम को समझ जाएंगे और यह कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। फिर इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने देखा होगा, लोग चर्च भी आते हैं, उनके काम भी बिगड़े रहते हैं, खराब ही रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, जब तक आप इस कलाम को समझते नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि समझदारी के बगैर हम नुकसान उठाते हैं। नंबर 1 बात है कि जब हमारे अंदर समझदारी नहीं होती, हम नुकसान उठाते हैं, हमारा लॉस होता है। हिजकिय्याह की किताब में देखेंगे, हिजकिय्याह 5 बाब 12 बाब और 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है, मैंने खुदावन का कलमा पाया, उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, तू बागी घराने के बीच में रहता है। देखने के लिए उनकी आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं, सुनने के लिए उनके कान तो हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो एक सरकश घराना है। सरकशी और बागीपन क्या है? खुदा के अहकाम से दूरी, उसके खिलाफ खड़े हो जाना, बगावत करना खुदा के खिलाफ। और जब हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो खुदावन के कलाम के मुताबिक, खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हम नुकसान उठाते हैं। अमाल की किताब में अगर हम देखें 28 बाब, अमाल 28 बाब, और लिखा है, तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शकीन हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है कि हम खुदावन के कलाम को सुनते नहीं है, उसकी आवाज को सुनते नहीं, हमारे कान प्यारे हो गए। हम ऐसा सुनते हैं कि हम समझते नहीं है, हमें समझ नहीं पड़ती है। खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम सुनी अनसुनी करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। चर्च में आते हैं, चर्च से बाहर निकले कलाम भूल जाता है। अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी समझ से, अकल के साथ खुदावन के कलाम को सुने और उसको अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगा दें। क्योंकि लिखा है कि ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं। जब हम दिल से समझ कर रजू लाएंगे तो फिर हम शिफा पाते हैं। हमारे हर एक जिंदगी के हर एक पहलू में शिफा नाज़िल हो जाती है कलाम की बदौलत।
बहाली का ताल्लुक जो है वो समझदारी के साथ। अगर हमारी जिंदगी में समझदारी की कमी है, नहीं है, तो फिर बहाली नहीं हो सकती है। नंबर 2, केयरलेसनेस, लापरवाही, निगलेक्ट, नजरअंदाज कर देना। जब हम नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को, हम गौर नहीं करते, तो खुदावंद का कलाम हमें बहाल नहीं कर सकता। जब हम चीजों को गौर से नहीं देखते तो हम बहाल नहीं किए जा सकते। जब हम लापरवाही करते हैं, और लापरवाही, हम उन मौके जो हमारी जिंदगी में हमें मिलते हैं, हम उन मौकों को जाया कर देते हैं। वो प्रोफेटिक वर्ड्स जो नबूवती कलाम है, वो खुदा का कलाम है, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, तो हम नुकसान उठाते हैं। मेरे साथ देखिए इब्रानियों का खत 2:3 लिखा है, इसलिए वाजिब है कि जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल से गौर करें, ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं। और तीसरी आयत में लिखा है, और हर एक कसूर और नाफरमानी ने वाजिबी बदला पाया, तो हम क्यों कर बचेंगे जब इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहेंगे। जब हम लापरवाही करेंगे, जब हम गाफिल रहेंगे, उस निजात के कलाम को, उस निजात की बातों को लापरवाही से सुनेंगे, उसको अपनी जिंदगी में मौका नहीं देंगे। खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है, वो हम उसको मौका नहीं देते कि वो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करे, क्योंकि हम लापरवाही करते हैं, निगलेक्ट करते हैं चीजों को। इसी तरह खुदावंद के कलाम में 2-3 वाकयात हैं जो लापरवाही का मुजाहरा करते हुए बहुत बड़ा नुकसान उठाया गया। हम देखेंगे गुज़ात की किताब, गुज़ात 11 बाब और 30वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं कि युफ्ता, उस पर खुदावंद का रूह नाज़िल होता है, और वो खुदा के रूह से ममूर होकर अब बनी अमून के खिलाफ जो है वो जंग करने के लिए जाता है। वो गैर कौमों के खिलाफ जंग करने जाता है, खुदावंद का हाथ उस पर होता है, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा करता है। क्या लापरवाही का मुजाहरा करता है? पढ़ के सुनाता हूं उसने क्या कहा। युफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू बनी अमून को मेरे हाथ में दे, तो जब मैं बनी अमून के पास सलामती के साथ फिरूंगा, तो मेरे घर के दरवाजे में से जो कोई मुझे मिलने को बाहर निकलेगा वो खुदावंद का होगा, मैं उसे सोख्तनी कुर्बानी गुजरानूंगा। देखिए किस कदर इस आदमी ने, ये खुदा का रूह इस पर नाज़िल हुआ है और ये जंग के लिए जाता है, लेकिन जोश के साथ लापरवाही का मुजाहरा करता है और कहता है कि मैं जो कोई भी जब जंग के साथ जीत कर आऊंगा तो फिर क्या करूंगा, जो कोई भी मेरे घर से पहले निकलेगा वो खुदावंद का होगा और उसको मैं सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजरान दूंगा। तो मेरे अजीजों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, हो सकता है आप जानते भी हो इस बात को, कि जब वो जंग जीत कर आया तो उसकी एक ही इकलौती बेटी थी, वो नाचती हुई गाती हुई उसके घर से निकली। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने अपने कपड़े फाड़े और उसने अपनी बेटी से कहा, तूने मेरे साथ क्या किया। अगर लापरवाही का मुजाहरा करके मन्नत ना मानी होती, उसका कोई बेटा और बेटी नहीं थी, सिर्फ यही इकलौती बेटी थी, जिसके लिए जब वो घर से जीत कर आया फतह का, तो उसकी बेटी को घर में पता चला कि मेरा बाप जीत कर आया, तो वो खुशी से सबसे पहले वही उसका इस्तकबाल करने को आई। तो मेरे अजीजों, लापरवाही जो है वो हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए
जब भी कोई मन्नत माने या कोई बात अपने मुंह से निकाले तो लापरवाही की बात ना निकाले। इसी तरह एक और वाक्य है, मत्ती की इंजील 14 बाब, सब वाकिफ है। यहां पर एक बेवकूफ बादशाह हेरोदीस है जो इस कदर मस्त है, जो खुश है, शराब पिए हुए पार्टी मना रहा है। और उसने कहा, हेरोदीस की जो उसकी हेरोदियास की बेटी थी, उसने बहुत डांस किया और वो खुश हुआ और उसने जल्दबाजी में लापरवाही से कहा, मांग जो कुछ तू मांगेगी। उसने कसम खाकर कहा कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और उसने अपनी मां से मशवरा किया और उसी लम्हे तो देखें क्या हुआ। उसी लम्हे उस औरत ने, हेरोदियास ने क्या कहा, मुझे यूहन्ना इस्तबागी का सर चाहिए थाल में। और बादशाह पछताता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन वो अपनी कसम से मजबूर था। उसने सारे लोगों के सामने कहा था कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो लापरवाही से बोले गए अल्फाज हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, हम नुकसान उठा सकते हैं। जिंदगी में 3 चीजें हैं जिनकी बेस पर हम अपने फैसले करते हैं। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आखिरी जो सबसे कमजोर है उससे बात शुरू करते हैं, जो लापरवाही का नतीजा बनती है। लापरवाही के फैसले या बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, वो सबसे जो कमजोर है, नंबर 3, वो है इमोशन। इमोशंस, जज्बात। मेरे अजीजों, इब्लीस जो है वो जज्बात के साथ खेलने में मास्टर है। जज्बात के साथ खेलने में मास्टर है। वो हमें बेचैन कर सकता है और हम कोई गलत फैसला ले सकते हैं, कोई गलत बात कर सकते हैं। नंबर 2, रीजनिंग, दलाइल देकर। ये थोड़ा सा उससे मजबूत फैसला होता है, इमोशन से, जज्बाती नहीं, दलील के साथ। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होता है, उसकी बेस पर हम कोई फैसला लेते हैं। ये थोड़ा उससे बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन जो तीसरा है, जो नंबर 1 है, जो सबसे पावरफुल है, वो है समझदारी। हमें समझदारी की जरूरत है और वो समझदारी जो है वो हमें खुदावंद का कलाम अता करता है। यहां पर हम देखते हैं उस बादशाह ने नबी का सर कटवा दिया। वो औरत जालस थी, क्योंकि नबी ने कहा था, यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। तो मेरे अजीजों, लापरवाही जो है वो हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। नंबर 3, इग्नोरेंस, जहालत, लाइल्मी। बादशाहत के कवानीन, बादशाही की राहों के जो कवानीन हैं उनसे लापरवाह रहना, लाइलम रहना, जहालत का मुजाहरा करना। ज़बूर नंबर 82 में हम देखते हैं, ज़बूर नंबर 82 5 आयत में लिखा है, वो नहीं जानते और नहीं समझते, वो तारीकी में चलते फिरते हैं, जमीन की बुनियादें हिलती हैं। ध्यान दे खुदा उनके कलाम पर। मैंने कहा कि तुम खुदा हो। खुदा जो है वो इंसानों को कह रहा है कि तुम खुदा हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे। क्यों? और सरदारों में से किसी एक की तरह गिर जाओगे। क्यों मरोगे? लिखा है कि वो नहीं जानते और नहीं समझते, वो तारीकी में चलते फिरते हैं। खुदा की बादशाहत के जो कवानीन हैं उनसे लापरवाह रहना, उनसे जहालत का मुजाहरा करना, लाइलम रहना भी हमें खुदावन के कलाम से दूर रखता है, नुकसान
کا مظاہرہ ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں نقصان آ سکتا ہے۔ امثال کی کتاب 19 باب دوسری آیت میں لکھا ہے، جوش بغیر تفکر کے فائدہ مند نہیں ہے، جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے وہ پھسل جائے گا۔ جوش کے ساتھ، جوش میں آ جانا، ایک دم سے کوئی فیصلہ کر دینا، تفکر کے بغیر۔ تفکر کیا ہوتا ہے؟ سمجھداری، علم۔ اس کے بغیر جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ آگے ہم بڑھیں تو خداوند کے کلام میں افسیوں کا خط 4 باب اور 18 آیت میں لکھا ہے، اس لیے 17ویں آیت سے پڑھتے ہیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند کے حضور منت کرتا ہوں کہ تم اس کے آگے ایسی چال نہ چلو جیسے غیر قومیں چلتی۔ غیر قومیں اپنی باطل عقل کے موافق چلتی ہیں، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور وہ اس جہالت کے سبب سے جو ان کے دل کی سختی کے باعث ہے، ان میں ہے، خدا کی حیات سے جدا ہے۔ جب ہم جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، اور خدا کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلاتا ہے۔ اگر ہم جہالت کا مظاہرہ کریں تو ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ابھی تک ہم نے جو نقصان اٹھانے والی چیزیں بات کر رہے ہیں، پہلا کیا تھا؟ سمجھداری، دوسرا لاپرواہی، تیسرا جہالت، لا علمی، چوتھا ابیوز یا مس یوز۔ جب ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں، ہمیں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا استعمال جو ہے وہ غلط طریقے سے کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ چیزیں جو ہیں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کا استعمال، اتھارٹی، جب ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں اختیار ملتا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ چیزیں، متی کی انجیل 25 باب اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں اگر ہم، تو ہمیں وہاں پر ایک تمثیل ملتی ہے، کنتاروں کی تمثیل۔ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنتار دیے گئے، ایک کو 5، ایک کو 2 اور ایک کو 1۔ جس کو 5 دیے گئے اس نے استعمال بہتر کیا، اس نے 5 اور کمائے۔ جس کو 2 ملے اس نے اور 2 بنائے، اور جس کو 1 ملا اس نے کیا کیا؟ اس نے مس یوز کیا، اس نے ابیوز کیا، اس نے اس کو دبا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ اس کو سزا ملی۔ اسٹوری کے آخر میں کیا ہے؟ اس کو سزا ملی۔ اسی طرح پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں عالی کاہن کا ذکر ہے۔ عالی کاہن جس کے پاس سیموئیل بڑا ہوا، وہ عالی کاہن جس کے پاس رہ کر بچہ سیموئیل بڑا ہو کر بہت بڑا نبی بن گیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عالی کے بیٹے خبیث تھے۔ پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور عالی کے بیٹے خبیث تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کاہنوں کو یہ پریولیج حاصل تھا، ان کو یہ اختیار تھا، ان کا یہ حق سمجھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی سوفتنی قربانی چڑھانے کے لیے آتے تھے، وہ دیگ میں گوشت ڈالتے تھے تو ان کے پاس ایک پنجے نما ایک چیز ہوتی تھی، جیسے کانٹا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ڈالتے تھے، وہ مار کے، اور اس کے اندر سے جو گوشت ہوتا، جو بھی اس کے اوپر لگ جاتا وہ پھر کاہن کا ہوتا، وہ کاہن کا حصہ ہوتا، سمجھا جاتا تھا۔ یہ خدا کے قانون کے مطابق تھا۔ لیکن یہ جو عالی کاہن تھا، اس کے جو بیٹے تھے، یہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، اور جو بھی قربانی گزرانے جاتا اس سے گوشت قربانی سے پہلے ہی مانگ لیتے، سوختنی قربانی چڑھانے سے پہلے ہی اس سے کہتے کہ میرا حصہ یہیں سے مجھے دے دے، کیونکہ ہم کاہن کو کیا کر رہے ہیں؟ کباب بنانے ہیں۔ لکھا ہے اس میں، اگر ہم یہ 2، 3 اور 4 باب پورے باب پڑھیں دوسرے سے چوتھے تک تو یہ پوری سٹوری ہے، اور ایٹ دا اینڈ سٹوری کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ
दोनों बेटे, जब जंग होती है, बनी इसराइल की जंग होती है, तो वो दोनों बेटे उस जंग में मारे जाते हैं और खुदा का जो अहद का संदूक है वो भी छिन जाता है। और जब खबर आती है घर में खबर आती है, आली कायम बूढ़ा हो चुका था और वो अपनी वो जो उसकी स्टिक थी, उसका आसा था, उसकी टेक लगाकर कुर्सी बैठा था, और जब उसने ये खबर सुनी तो वो एकदम से नीचे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और क्या हुआ, मर गया। तो नुकसान हुआ, बेटे ही मर गए। जब हम मिस यूज करते हैं इख्तियार का तो खुदा की तरफ से सजा मिलती है। पांचवा जो वजूहात है वो है टेस्ट एंड ट्रायल। जब हम आजमाइश में पढ़ते हैं तो फिर हम सब्र का मुजाहरा नहीं करते। मुझे इशारे होने शुरू हो गए हैं कि भाई बस कर दो, क्योंकि हम खुदा का कलाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा बर्दाश्त करें 10 मिनट। याकूब रसूल अपने खत में लिखता है, अरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे कमाल खुशी समझो, ये जानकर कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को तकमील तक पहुंचने दो ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और किसी बात में नाकिस ना रहो। जब हम आजमाइश में पड़े तो क्या करना है? सब्र करना है। अगर हम सब्र नहीं करते तो फिर हम नुकसान उठा सकते हैं। तो ये 5 बातें हैं जो हमें नुकसान देने की बातें हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि मेरा यस्सु, जिंदा यस्सु, इन तमाम बातों के बावजूद आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड। जिंदा यस्सु आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। तो बहाली के चंद कवानीन है, 4 बातें हैं, जल्दी से करेंगे। नंबर 1 जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन है, अपने आप को जांचना। क्या? अपने आप को जांचना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, करंथियों 2 करंथियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम अपने आप को जांचो कि तुम ईमान पर हो या नहीं हो। बहाली के लिए अभी हमने सीखा कि किन किन चीजों की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन, बहाली कैसे हो सकती है। तो नंबर 1, सबसे पहले बहाल होने के लिए, जब हमारा नुकसान हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, तो हमें वापस बहाल होने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे पहले अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को जानने की। खुदा का कलाम कहता है, तुम अपने आप को जांचो कि तुम ईमान पर हो या नहीं। तुम अपने आप को परखो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो? जानने की जरूरत है हमें, अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है। ये हमें अलग बैठकर अपने आप का तफसील के साथ जांचने की जरूरत है कि यीशु हमारे अंदर है, हम ईमान पर हैं या नहीं है। अगर हम ईमान पर हैं तो यकीन करें हम बहाल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी बात, जो दूसरी मिसाल है, वो मुसरफ बेटे की। लूका की इंजील 15 बाब और 17वीं आयत में लिखा है कि मुसरफ बेटा, सबको पता है उसकी स्टोरी का, वो अपना हिस्सा लेकर चला गया, और जब सब बर्बादी उस पर आ चुकी तो फिर लिखा है 17वीं आयत में लिखा है कि जब वो होश में आया, होश में आकर उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं जाऊंगा अपने बाप के पास। उसने कहा मेरे बाप के मजदूरों को कितनी रोटी मिलती है और मैं इधर सूरों के साथ फलियां, वो भी मुझे नहीं मिलती हैं। तो उसने कहा कि मैं उससे कहूंगा, क्या बाप, मैंने आसमान का तेरी नजर में गुनाह किया है, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद रख ले।
جب ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، واپس پلٹنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم گھمنڈ کے اندر ساری زندگی گزار دیں۔ دوسری جو اہم بات ہے، اس مصرف بیٹے نے کیا کیا؟ پھر جا کر بحال ہوا اور اس کو وہی رتبہ، بیٹے کا رتبہ واپس دیا گیا جب اس نے اپنے آپ کو جانچا، پرکھا۔ تو دوسری جو خاص بات ہے، نمبر 1 سیلف ایگزامینیشن، اپنے آپ کو جانچنا۔ دوسرا بروکننس، شکستہ دل اور شکستہ روح کے ساتھ خداوند کے حضور آنا، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ نمبر 1 سیلف ایگزامینیشن، بحالی کے لیے۔ دوسری جو چیز ضروری ہے وہ ہے شکستہ روح۔ جب داؤد نے گناہ کیا تو زبور نمبر 51 میں لکھا ہے کہ اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ خداوند میں شکستہ دل کے ساتھ تیرے حضور آتا ہوں۔ اس کے ساتھ شکستہ دل اور شکستہ روح کے ساتھ لکھا ہے، اے خدا تو شکستہ اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جانے گا، اے خدا شکستہ روح میری قربانی ہوگی۔ تو دوسرا جو ہے وہ شکستہ روح اور شکستہ دل کے ساتھ، خستہ دل کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرنا۔ نمبر 3 نالج، علم حاصل کرنا۔ یہ نالج وہ نالج نہیں ہے کہ یہ اس نالج سے ہمیں کیا ملے گا، یہ وہ نالج ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے دینا کیا پڑے گا اور دینا کیا پڑے گا۔ جب ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں، تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دینا کیا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے، نہ صرف ہم ایمان رکھیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے یسایہ 60 باب، اور اس میں لکھا ہے، اٹھ منور ہو۔ کیا؟ اٹھ، خداوند حکم دیتا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ تاریکی مطلب تباہی، بربادی چھائی ہوئی ہے، اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے۔ پریز گاڈ۔ اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے، اور قومیں تیرے نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گی۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر نالج حاصل کریں، یہ نالج جو ہے یہ روشنی ہے، یہ طاقت ہے، یہ نور ہے، اور نور جو ہے وہ اس کا تعلق بحالی کے ساتھ ہے۔ نالج جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کام کریں، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کام کس طرح کرنا ہے۔ بحالی ایسے ہی آتی ہے۔ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دعا کریں، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دعا کس طرح کریں۔ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسا روزہ ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، کس قسم کا روزہ خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ چاہتا ہے، من کا چاہتا ہے، یا صرف زبان کا ہی روزہ چاہتا ہے؟ ہم بھوکے ہی رہیں صرف۔ نالج ہمیں بتاتا ہے کہ دینا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے۔ لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دائنا ہاتھ دے تو بائنا ہاتھ نہ جانے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، کیسے دیتے ہیں؟ فیس بک پر اشتہار دے کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، چوتھا پوائنٹ جو بحالی کا ہے وہ ہے پروفیٹک ورڈز، خداوند کا کلام۔ یسایہ 42 باب میں لکھا ہے 22 آیت میں،
मगर ये एक लूटी हुई गारत की हुई उम्मत है, ये सब गढ़ों में फंसे और बंदी खानों में छुपाए गए, वो लूटे गए और कोई नहीं जो छुड़ाए, वो गारत किए गए और कोई नहीं जो कहे कि वापस दो। वापस करने का मतलब क्या है? बहाल करना। कोई नहीं है तो कौन कहता है कि वापस दो? नबी कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि वापस दो, बहाल करो। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि दूसरा सलातीन उसकी 6 बाब और पहली से 7वीं आयत के अंदर हम पढ़े तो वहां पर एक एलीशा नबी के मौजज़े का जिक्र है। वहां पर लिखा है कि नबी ज़ादे जो थे उन्होंने कहा एलीशा नबी से कि हम एक बड़ी जगह पर वो बनाते हैं अपना डेरा, और उसके लिए दरख्त काटने, लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं। और जब वो दरख्त काटने जाते हैं तो वहां लकड़ियां काटते हुए एक जो उनमें से लकड़ियां काटने वाला था, उसका कुल्हाड़ा जो था, उसका जो लोहे का पीस था, वो दरिया में गिर जाता है, पानी में गिर जाता है। और वो चिल्ला उठता है कि हाय मालिक, ये तो जो कुल्हाड़ा था ये मांगा हुआ था, उधार लेकर आया था, मेरा नहीं था। तो नबी ने क्या कहा कि कहां गिरा है? तो एलीशा नबी ने वहां पर क्या किया? लकड़ी फेंकता है और फिर क्या होता है? लोहा जो है वो पानी पर तैर कर आ जाता है, और नबी कहता है कि हाथ बढ़ाकर इसको पकड़ ले। प्रेज गॉड। खुदावन जो है, जो नामुमकिन है, क्या लोहा पानी पर तैर सकता है? कुल्हाड़ा पानी पर तैर सकता है? छोटी सी चीज होती है। बहुत बड़ा लोहे का पीस हो ना तो वो शायद पानी पे तैरेगा, लेकिन छोटा सा और इतना वजनी कुल्हाड़े का पीस वो पानी में गिरा और उसके अंदर चला गया। ये खुदावन के कलाम की कुदरत है। ये नबी की मार्फत खुदावन कलाम करता है, वो काहिन की मार्फत कलाम करता है और बहाली अदा करता है। एक और हवाला पढ़ेंगे और ये फाइनल है। नहमिया की किताब। नहमिया वो बादशाह, वो बंदा है, वो काहिन है खुदा का, जो उजड़े हुए, बर्बाद हुए यरूशलेम को बहाल करता है। और लिखा है 5 बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। बस आज के दिन ही तुम उनके खेत और उनके अंगूरस्तान और उनके जैतून और उनके घर वापस कर दो। प्रेज गॉड। क्या लिखा है? आज के दिन ही तुम उनके खेत और उनके अंगूरस्तान और उनके जैतून और उनके घर वापस कर दो, और उनकी और नकदी और गेहूं और बैर और वो सूद भी जो तुम उनसे लेते हो। तो उन्होंने कहा हम वापस करेंगे और उनसे ना मांगेंगे, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। तब मैंने काहिनों को बुलाया और लोगों को कसम दिलाई कि वो इस कलाम के मुताबिक अमल करेंगे। खुदावंद का कलाम आज हमें बताता है कि हम खुदावंद के कलाम की बदौलत, नबी की मार्फत, काहिन की बदौलत, काहिन नबी खुदावंद के मैसेंजर है, खुदा के नुमाइंदे हैं, वो जब उस बात पर मोहर कर देंगे तो हमारी जिंदगी में बहाली आती है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबों को आज के इस कलाम के वसीले से बरकत दे और आपकी जिंदगी में बहाली और खुशहाली और फरावानी लाए। आमीन। शुक्रिया तारिक भाई, खूबसूरत कलाम। नजराने का गीत गाएंगे।
वक्त है आखिरी सेशन का। आए मेरे अजीजों, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपनी दुआएं चाहें खुदावंद के हजूर में रखेंगे। मैं दावत दूंगा आंटी सीमा को दुआएं आखिरी सेशन के लिए हम सब के लिए खास खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद से बरकत चाहें। आज जितनी जाने यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी दुआएं लेकर आए हैं, खुदावंद आज उन्हें अहूर की मानी कबूल फरमाए। बहुत सारे नाम हैं जो कुछ देर की वजह से हम पढ़ नहीं सके, लेकिन खुदा उन नामों को जानता है। खुदावंद आप सबके खानदानों को जानता है, उन सब नामों को जानता है। खुदावंद आज उन तमाम लोगों को अपने पाक और पवित्र हाथों से छुए, मसा करे और उन्हें बहाली अता करे। हम मिलकर गीत गाएंगे, ऐ खुदा पाक रूह आज बजकर। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को एक दफा फिर खुदावंद की तरफ उठाएंगे, एक बार इस गीत को गाएंगे।
मेरे अजीजों, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हमारा ईमान है, हमारा खुदा यहाँ मौजूद है, वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है, क्योंकि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारे खुदा का सख्त लगा है अजीजों, हमारा जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता अजीजों। जिसने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, हमें कैसे छोड़ सकता है। जिसने हमारी अपनी जान की कीमत अदा की, उसने अपनी जान की कीमत देकर अपना लहू देकर हमें खरीदा है। हम उसके खून खरीदे लोग हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। बड़े ईमान से अपनी ज़बानों को खोले और बड़े ईमान के साथ अपने खुदावंद का पुकारे। वो हमारा मुफ्ती दाता है, वो देने की कुदरत ताकत रखता है, वो आज हमारे यहाँ मौजूद हमारे दरमियान, वो हमें दुखों से तकलीफों से रिहाई देने आया है, वो हमें अपनी पनाह और सलामती रहमत में रखता है। वो वादों का सच्चा खुदा है। एक ज़ुबान एक खुदावंद की रहमत बचाओ, अपनी ज़ुबान खोले और पूरे ईमान से अपने खुदावंद को पुकारे। प्यार से बड़े प्यारे जिंदा पाक खुदावंद, हमारा ईमान है खुदावंद, तो अपने वादे के मुताबिक क्या मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ रहता है, हर मुसीबत हर परेशानी में हमारी ढाल बन जाता है। ऐ खुदावंद, तेरे लोग बड़ी आस से रातें लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु फजलों रहमतों से बड़ा है, वो देने की कुदरत ताकत रखता है। आज बाप खुदावंद, कोई झोली खाली न लगे, सब लोग झोलियां भर भर कर यहाँ से अपने घरों का लौटे, तेरे फजलों बरकतों रहमतों से भरे हो जाए। बाप खुदावंद, जितने बीमार आज से लेकर आए तेरे कदमों में, हर एक को खुदावंद छू अपनी कुदरत ताकत से और तमाम बीमारियों से शिफा बख्श इस नाम से। बाप खुदावंद, जिनके दिल के बाल बंद हैं, अपने पापों के प्रेशर से सबके दिल के बलवान को खोल दे इस नाम से। और बाप खुदावंद, इनके खुदावंद हार्ट के ब्रोकन हाई ब्लड प्रेशर से अटैक से शिफा बख्श इस नाम से। कितने लोग शुक्र है अपने पाप डॉक्टर से लोग शुगर की बीमारी से शिफा बख्श इस नाम से। जिनके बदन में दर्द है, कोई तकलीफ है, इस नाम से अपने पाप डॉक्टर से लोग मुकम्मल शिफा बख्श। ऐ बाप खुदावंद, जो बेगुनाह शादी जोड़े हैं, खुदावंद तू कुदरत का खुदा है, तू मांझ के घर को आबाद करता है अपनी कुदरत ताकत से। खुदावंद बेगुनाह शादी से जोड़ा हो, गुनाह जैसी नेमत अता कर इस नाम से। बाप खुदावंद, जब बेरोजगार है, हर एक को रोजगार का बहाल कर इस नाम से। बाप खुदावंद, जब बीमार अस्पतालों में है या घर में है, और जहाँ खुदावंद ऑनलाइन में ज्वाइन की है, हर एक को खुदावंद शिफा दे, दुखों से, बीमारियों से, तकलीफों से, आज के गुनाह के
कुदरत से सबकी जिंदगियां बदल जाए यीशु नाम से। आज के नाम के इसी ने हम शिफा पाजे कि यीशु की तेरे गुलाम की कुदरत से तेरे पाक जन्म से दुनिया के यीशु नाम से। और खुदा हमें ईमान की मजबूती दे, पाक उसे मालिक मजान शुक्र बताकर जो है तेरा जिंदा कलाम सुने खुदावन, ये कलाम हमारे दिलों पर नक्श हो जाए। और खुदावन हम इस कलाम को अपने दिलों में लेकर अपने घरों को लौटे और तेरे इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें यीशु नाम से। पाप को लेकर जाने के खुदावन आज बड़ी बरकत दे, हमारे क्या से बुला दे, यीशु नाम से पूरी कर। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। सब थोड़ी देर से खामोशी प्यार करें। हमारा खुदा यहाँ मौजूद है, खुदा उनकी आवाज सुने। वो एक एक को छू रहा है, वो सबको बरकत दे रहा है, वो सबको सबकी मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से शिफा दे रहा है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद तेरी बड़ाई हो। ये सब कुछ हमारे बाप हमने बड़े ईमान से मांगा है और हमारा ईमान है हम सब ने पा लिया तेरे प्यारे जिंदा बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो ताकि खुदा ने हमेशा यीशु जी के नाम की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक।